Welcome back to the afternoon session of the fourth day of the training program. That is on green information technology for a sustainable future or for a environmentally responsible business, we would have said. When we say, okay, the main thrust of this session is to bring forward a comprehensive view of our choices and decisions pertaining to ICT and related peripherals in relation to our natural environment. So the main thrust of this session is to bring to bring your point of views regarding this concept. So before I start with the discussion on the theme, I would like to get your understanding of what green information technology may be according to you. When we say green IT, what it may be? When you hear the term, sir, green information technology, what do you think it can be about? Yes, okay. Sir, आप कुछ green IT? Something which will not produce e-waste. Okay, something which will not produce e-waste. Okay, perfect. Okay, sir. ठीक perfect, sir. Sir. I think this will also जैसे traffic signals हैं. That's it. उसमें आप use जब करते हो. That's it. A lot of vehicle consumption of fuel वगैरह. Okay. It is not कि information technology green होगी. That's it. But उसके impact जो है. वो ग्रीन हो गया. परफेक्ट. सर सभी ने अच्छे आंसर्स दिए. सर सबसे क्लोज हैं. व्हेन वी से ग्रीन आईटी, व्हेन वी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन जनरल, ईच थिंग हैज टू साइड्स टू इट, positive and negative also. In the same way, when we say information technology, it has positive things, impacts also, and negative also. There can be two cases. Case one is that IT का जो environment पे negative impact है, उसको जो reduce करना अगर हमने, that will also be considered to be green IT. कि IT का जो impact है environment पे, उन impacts को कम करना, वो भी green information technology है. ग्रीन आईटी मींस आईटी को यूज करना जो हमारे अदर प्रोसेसेस एंड बिजनेस एक्टिविटीज है डे टू डे और बिजनेस प्रोसेसेस. आईटी को यूज करना जो हमारे अदर प्रोसेसेस हैं उनका इंपैक्ट जो एनवायरनमेंट पे है उसको कम करने के लिए, दैट इज आल्सो ग्रीन आईटी. सो देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ इट, है ना. सो हम छोटी सी एक मेरी पेट एग्जांपल से शुरू करते हैं कि उससे मैं ये ग्रीन आईटी के सेशन को मैं शुरू करता हूँ. Let us consider an example of ironing of your clothes. Ironing of our clothes. How much time in a day we use the iron? Press like half an hour. Let us consider half an hour. Maybe 15. Okay. Half an hour. When we say half an hour, what is the rating of a electric press? 750 watt. Okay, सर ने बहुत क्लोज फिगर दिया. ऐसे ही हमारे पास अगर स्टीम वाली है तो 2 किलोवाट भी है, 8 किलोवाट भी है, 1.5 also maybe there. So let us consider on an average to be, for an example, to be 1 kilowatt. Let us consider that 1 kilowatt. Okay. How much days in a year we use it? We are using half an hour. We use daily. और मे बी हम सर्दियों में मे बी थोड़ा कम करते हो, जो हमें लगेगा कि चलो ऊपर जर्सी पैकिंग पहन के जाना है तो शर्ट प्रेस ना भी होगी तो चलेगा. Okay, you have given a new use. फिर भी हम इसको 200 days में on an average लेना. Let us consider to be 200 days. So if I multiply by these figures, half an hour multiply by 1 kilowatt multiply by 200, how much it comes out to be? 100 kilowatt hour in a year. Okay. जैसे अब यहाँ पे एक और बात आती है. फर्स्ट सेकंड
Now I ask you another question. What is the power rating of a desktop computer? $300. Okay, 300. सर ने 100 watts था, आपने 300 watts. Okay, okay. Normally जो आपकी एनर्जी स्टार रेटिंग है, उनके वेरी करते हैं 240 to 450 watts something. पर जो assembled हमारे डेस्कटॉप्स होते हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज में सबसे पहले वही होता है कि कॉन्फ़िगरेशन आपके अकॉर्डिंग बना देते हैं. तो उसकी जो रेटिंग होती है वेरीज फ्रॉम 650 watt to 750 watt. So let us consider it to 600 watt. Let us consider it to be 500 watts or 0.5 kilowatt on an average, for an example. How much time in a day we use it? 0.5 kilowatt is the rating. Let us consider of electronic desktop. How much time in a day we use it? 6 hours. 6 hours? That's perfectly fine. Let us take it to be. I consider joint use of your office also and house also. Let us consider it to be 10 hours. If I am not wrong, ये घर का मिला के हो ही जाते हैं ज़्यादा होगा. उससे ज़्यादा ही होगा. Okay, 6 घंटे के. Let us consider to be 6 hours. Okay. How much? सर ने कितना कहा? सर तो मोबाइल में ना. नहीं मोबाइल पे मैं अभी क्वेश्चन लेके हम लोग. Okay, 6 hours multiply by how many days in a year we use it? ये तो ज़्यादा पड़ जाएंगे इसकी. इसको छुट्टी तो देते नहीं हम. 300. अब इसकी कैलकुलेशन निकाले तो कितना बड़ा? 900. Okay, 900 kilowatt hour. So it was 100. It is 900. But जब हमारे बच्चे या हम जब बच्चे होते थे, हमारे बुजुर्ग दादाजी पापा जब प्रेस हम यूज करते थे, तो हमें डांट सुनने को मिलती थी. क्या जी आप ये बिजली वेस्ट कर रहे हो, प्रेस जल्दी छोड़ती है, बिल कौन देता. बट डू वी क्वेश्चन नाउ हम इतना डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं, क्या अपने आप को हम रिस्ट्रेन करते हैं या हम अपने बच्चों को करते हैं कि आप जो डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं अकेले डेस्कटॉप से 900 किलोवाट कंज्यूम हो रहा है. अब मैं यहाँ सोशल पर्सपेक्टिव की बात नहीं करता, दोनों चीजें निकालते हैं. और ईच व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इन इंडिया? Coal, 60%, 0.6. If I multiply both the things by 0.6, I will get that component of these kilowatts that are from thermal sources. And for each unit of coal burned, for each unit of kilowatt of electricity produced, there is certain centimeter cube of CO2 emitted to the atmosphere. If you have that, you multiply by that centimeter cube rating, you will get that component out of this consumption of yours that is adding how much CO2 it is adding to the environment. If you wish to have the environmental impact of it, carbon footprint of it. But another thing, plus consumption of water. And that is also there is electricity by hydro also. अब इस केस में एक और चीज मैं निकाल रहा हूँ. अब ये इसको छोड़ दूं मैं एनवायरमेंट. दैट इज द एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव. अब एनवायरमेंटल मैं सभी को कन्विंस नहीं कर सकता कि आप ऐसा ना करो जी, कम करो. लोग कहेंगे क्यों, काम तो कर रहे हैं. बट इस केस को आप मल्टीप्लाई करो पर यूनिट रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इफ आई मल्टीप्लाई इट बाय 100 किलोवाट मल्टीप्लाई बाय 7 in a state, so it is 700 rupees. And here it is 3,600. 6,300. So 6,300 rupees are being consumed towards your electricity usage on account of your any electronic peripheral whose rating is 500 watts. We have considered it. If we are using it for we are considered 300 days. So
So here the point becomes clear. So अब हम बात कर सकते हैं कि ये मैंने बात की सिर्फ एक डेस्कटॉप की, and there are certain business processes where the laptops, desktops and servers work 24/7. For example, banking, IT, ATMs. That's it. So when one NGO, one Parivan Welfare Society that is being run by one of my friends in Patiala, so हर इवेंट वो मनाता है थापर में. तो एक दिन वर्ल्ड अर्थ डे पे हमने ये डिसाइड किया कि हम ना थापर से परमिशन लेके कि 10 मिनट्स के लिए हम बिजली को कट लगाएंगे शाम को 7 से 7:10 में पीएम में. जो कट लगाया तो उसने जो कैलकुलेशन निकाला, थापर्स ऑन कैंपस स्ट्रेंथ ड्यूरिंग इवनिंग इज 3500 अप्रॉक्सीमेट, इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स एंड रेजिडेंशियल स्टाफ. तो हमने ये कंक्लूजन निकाला कि 10 मिनट में जो यूनिट सेव्ड थी वो थी अराउंड देवर ऑफ 8 to 10,000 ऑफ रुपीज. 8,000 ऑफ रुपीज यूनिट्स वर सेव्ड. अगर 8,000 की बात करूं, 10 मिनट के चंक 1 घंटे में कितने हैं? 6, 48,000. 1 घंटे का इट मींस कैंपस का कंजम्पशन 48,000 का है. 24 आवर्स का कितना हो गया? अप्रोक्सीमेट 12 लाख. 30 दिन का कितना हो गया? $3 crore. That's it. हाँ, 3 crore 60 lakhs. So we can make out कि अगर हम और ये सिर्फ एक 3500 कैंपस वाले स्ट्रेंथ के कैंपस की मैं बात कर रहा हूँ. अब हम बात करते हैं कि लवली जैसे कैंपस की, जहाँ की स्टूडेंट स्ट्रेंथ है आपकी 25,000 से ज्यादा, 5,000 फैकल्टी मेंबर्स, 10,000 स्टाफ मेंबर्स, 40,000 people are there in that campus in a single day. So we can make out what kind of massive consumption is there, what kind of massive potential is there for saving. And there is a business opportunity into it. When I got an opportunity to join with them, I requested them that I wish to work with you on long-term basis, but give me an opportunity. I will study the energy consumption pattern of your university and I will come up with guidelines. But उन्होंने कहा पहले आप join करो फिर देखेंगे. But by the time I got the opportunity to be here, over here. But anyhow, but there is a potential. So there, this in a nutshell, मैंने आपको एक brief दे दिया कि when I say green IT for a environmentally responsible business, what does it mean? Means you have to work on these kind of business opportunities where there is a potential for money earning also, and in the same way, goodness is also there. That's it. Okay. Now, the flow of this presentation is green information technology introduction to the theme we have covered with the example, terminology, basic terminology associated with it, green IT को define करने की कोशिश की गई है, इसके 4 different perspectives है, उसको cover करने की कोशिश है. Then highlighting green IT potential and linking it to the information technology product life cycle. Then viewing each phase of IT product life cycle from a green lens. तो जो जहाँ relevant point है उन पे हम रुकेंगे, otherwise को मैं थोड़ा सा जल्दी करता जाऊंगा ताकि आज इवनिंग का टाइम है तो you should not be bored also. But if you have any question queries, you can interrupt me. Okay. So here, this is based on literature review. Given the penetration of ICT peripherals in our homes and the organization at an incredible pace, its negative impact on the environment can't be evaded. As per Hannay 2011, 2 main problems related to IT includes high energy consumption by IT. If we consider the total life cycle of the IT products, means from manufacturing to end of IT life cycle. Second is the problem of e-waste arising out when the IT devices are discarded. So one opportunity is in terms of measurement and monitoring and control. Another is in terms of mitigating e-waste is also another opportunity. So having said all these, okay, हमने ये negativity बातें तो की, there are positive sides to IT also.
IT at an advanced level, here it says there are two aspects of IT. One is energy conservation of IT, one is energy conservation by IT. Energy conservation of IT means IT का जो environment पे impact है उसको कम करना. Energy conservation by IT means कि IT को use करके जो मैंने बात की थी दूसरे processes business का activities का जो environment पे impact है उसको कम करना. अब थोड़ी सी इसकी examples लेते हैं. Can you give an examples? कि आईटी को यूज करके हमने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में कैसे यूज किया कर सकते हैं आईटी को. Building automation system that works on perfect. Remote site monitoring system. For example, in 2008 when I was doing my MBA, उसका जो internship था, I worked with HCL, Hindustan Computer Limited, HCL Frontline Division. तो उसमें एक मैं उनके प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रहा था. तो मैं स्पाइस उस टाइम पे होता था, अब आइडिया ने टेक ओवर कर लिया है ना. तो स्पाइस टेलीकॉम उनके ऑफिस में गया. वन ऑफ माय टीचर्स जॉइंड ओवर देयर एज अ इंजीनियर. तो मैं जब उनके ऑफिस में गया तो मैंने देखा तो वो क्या कर रहे हैं. दे आर मॉनिटरिंग द साइट्स सिटिंग इन देयर ऑफिस यूजिंग कैमरास. They are monitoring the sites, remote sites, sitting in their offices using the cameras. अगर गवर्नमेंट सिस्टम होता तो क्या होता, एक इंजीनियर होता, उसको जीप मिला होता, उसका डीजल खाता होता है और वो डीजल डाल के ले जाता है. मे बी कई बार तो डीजल डलता ही नहीं है, बिल्स रेज होते हैं ऐसे. बट व्हाट दे डू, दे मॉनिटर, दे हैव यूज्ड द टेक्नोलॉजी टू मॉनिटर द साइट्स ऐसे. It saves you need not travel daily to the site to check this whether it is working or not. Whenever there is some fault, it is indicated. Then you have to move. That's it. Another, at an advanced level in US, it is being done. For example, there is a traffic jam on a road. There is going to be a situation like traffic jam. So here in our country presently, what happens if there is a traffic jam, 2 kilometers long jam? All vehicles are standing. Nobody is taking the social initiative कि उधर के रास्ते को खुलवाए. वो भी कोई नहीं करेगा. गाड़ियों में बैठे रहेंगे और वो गाड़ियां ऑन रहेंगी. Chlorofluorocarbons. But what they do? You have a GPS. There is a jam, then they will divert. Divert. So jam will be shorter. That's it. And that's it. Will take less time. So in US, what happens? Their systems suggest you while you are driving how much time it will take on that route. So it will come up with your alternate routes also. That's it. That is another aspect of IT, positive aspect of IT, using IT to, that's it. Third, this video conferencing training. For example, if maybe some of the participants are not taking it seriously, but if we see it in other context, if they have to come from their centers, 20 people each, 3 centers, 60 people have to travel over here. Either they will use train, buses, or their own cars, vehicles. They will be coming, they will be going. The more then there is need for travel, more burden on transport, more is the pollution. They can have access. That's it. They won't have to recreate their own exercises. That's it. So you have different kinds of benefits of it. So roughly 3% of the global electricity uses, according to Ruth in 2000 study conducted by Ruth in 2009, and about 2% of the total worldwide greenhouse gas emissions is accounted to the ICT infrastructure. Means जो worldwide gas emissions का 2%, worldwide 3% electricity use, 2% जो greenhouse gases का emissions है, वो माना जाता है कि वो ICT infrastructure के कारण ही है. Therefore, it is need of the hour to call for green IT and green information systems. As with the exponential increase in the adoption of ICT in developing countries, its impact on environment over the next 10, 20, 15 years can't be ignored. So these are the अगर ये countries जो हमारी potential markets हैं, India और China, we are considering it to be
But if we do not look into these factors, so these technologies will become the liability also. Why? यहाँ पे मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि when the green revolution came, what was the that era when green revolution was there? It was I feel so 70s, 60s to late 60s or 70s, mid of 70s. Okay, तो कुछ मैंने एनजीओज जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के कंटेक्स्ट में है उनके साथ मैंने थोड़ा इंटरेक्शन किया, तो ये कंक्लूजन निकला कि उस टाइम पे जो आपका इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का यूज शुरू हुआ था, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बिकॉज कि उस टाइम का एक हमारा प्रॉब्लम था कि वी वर नॉट एबल टू मेक द फूड अवेलेबल टू अ होल ऑफ द पॉपुलेशन. सो साइंटिस्ट को पता था कि इसको अगर हम रेपिटेटिवली यूज करेंगे तो उसका कंटेंट जो है बियॉन्ड लिमिट जाएगा तो वो हार्मफुल है. बट दे इंट्रोड्यूस इट फॉर एज अ टेक्निकल सोल्यूशन, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन. बट व्हाट आवर एंसेस्टर्स डिड, आवर दादाजी, ग्रैंडफादर्स, है ना, चाचा जी, उन्होंने क्या किया, सबने पापा फादर्स, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबने यूज किया इसको रेपिटेटिवली 60 इयर्स डाउन द लाइन. ठीक, अब उसका कंक्लूजन ये निकला कि कुछ कैंसर पेशेंट से मैं मिला 2000 मैंने यहाँ पे 11 में कुछ कैंसर्स जो डॉक्टर्स पीजीआईज में थे, ट्रेनिंग्स ले रहे थे, तो एक मेरा कॉमन फ्रेंड था, उसके घर पे उसकी बर्थडे पार्टी से गए, तो उनसे पूछा कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ कैंसर. तो वो कहता कि पहले जो 100 लोग चेक करवाने हमारे पास आते थे तो उनका जो पॉजिटिव डिटेक्शन रेट था वो 15 से 20 होता था. बट एज ऑन डेट आज की अगर बात करें तो 100 लोग अगर डाउट से आते हैं ना मेरे को कैंसर है, तो 40 से 45 लोगों को वो पॉजिटिव डिटेक्ट हो रहा है. दे आर बीइंग डिटेक्टेड पॉजिटिव कि उनको कैंसर है. अच्छा, एक मेरा दोस्त मेरा ग्रुप मेट मोहाली 67 में रेंट में रह रहा है, तो मैं उसके साथ चंडीगढ़ रहा आके, अब 68 में सेक्टर 67 में था उस टाइम पे. तो एक उनके गांव से एक अंकल आए, उन्होंने कहा कि हमारे आंटी रुकेंगे तुम्हारे कमरे में करेंगे, तुम्हें लॉबी में सोना है, और अंकल को हॉस्पिटल, आई विल नॉट नेम द हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल में रखा गया उनको. तो एक दिन वो कहता कि मैं गाँव जा रहा हूँ, तुम ना एक मेडिसिन रिप्लेस करवा देना. मैंने कहा ठीक है. तो मैं आंटी को लेके वहां गया हॉस्पिटल में. वहां पे अनदर फ्रेंड ऑफ माइन हु इज इन ऑस्ट्रेलिया, बिलोंग्स टू बाबा बकाला, उसके सिस्टर फार्मेसी डिपार्टमेंट में लगे हुए. तो मैंने कहा सिस्टर देखा तो पहचान गए. तो उसने पाजी कि मैं वी इंटरेक्टेड इन पंजाबी बट आई एम कन्वर्टिंग इट इनटू इंग्लिश. तो उसने कहा कैसे आए हो भैया, हिंदी, मैं हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ. मैंने कहा कि ऐसा ऐसा ये अंकल है, तो ये हमारे गाँव से हैं, तो आप डॉक्टर से बात करके मेरे को बताओ कि वो मिसलीड ना करे कि कुछ मेडिसिन रिप्लेस होनी है. 1 मिलीग्राम के 10 मिलीग्राम के 10 सॉल्ट्स थे, 1 मिलीग्राम के 10 डोजेस. तो उन्होंने कहा कि ठीक है, डॉक्टर से पूछ के आए, लिख के मेरे को दे दिया क्या चेंज कराना. उन्होंने कहा कि वहां पे एक मेडिकॉज है स्टेडियम के पास, वहां चले जाओ, तो वहां से मिल जाएगा. मैं वहां गया, जो वो सॉल्ट वापस हुआ वो उन्होंने 2500 रुपए का लिया. जो नया सॉल्ट दिया उसकी एमआरपी 27,000. कैलकुलेटर उठा के मेरे को कहा कि आप 20,000 दे दो, 20,000. तो मैंने फोन लगाया, मैंने कहा सिस्टर कि ये तूने क्या मिसलीड कर रहा है डॉक्टर, कि वापस तो 2500 का हो रहा है, नहीं का एमआरपी 27,000 है, मांग 20,000 है. वो कहती भैया आप उस मेडिकल शॉप पे नहीं गए, गलत तो नहीं गए. मैंने पढ़ा तो मैंने देखा कि गलत मेडिकल शॉप पे था, जो उसने कहा था मैं उस पर नहीं था. बट मैं चुप रहा, मैंने लाउडली नहीं बोला कि नहीं मैं उस पर नहीं हूँ. मैंने पूछा, कहती फिर डॉक्टर से पूछ के आती हूँ. डॉक्टर से पूछ के आई तो डॉक्टर ने कहती भैया, डॉक्टर कहते कि ये पेटेंटेड ड्रग है, तो ये महंगी होगी, जेनरिक से उनका शायद नहीं बना ट्रीटमेंट, पहले वो था जेनरिक था. अच्छा, मैंने अब एमबीए तो था, तो मैंने अपनी नेगोशिएशन स्किल्स लगाई. उसको फोन को मैंने कट किया, मैंने उस केमिस्ट शॉप वाले से नेगोशिएट किया. मैंने कहा कि मेरी सिस्टर उस हॉस्पिटल में फार्मेसी में है एंड शी सेज कि ये इतना महंगा है ही नहीं, वो गलत लगा रहा है. उल्टा कहा मैंने कि आप ज्यादा लगा रही हो. तो ही सेड, उसने फिर कैलकुलेटर निकाला तो कहता आप 15,000 दे दो. सो 27,000 एमआरपी. आंटी, देयर वाज स्मॉल स्माइल ऑन द फेस ऑफ आंटी जी, बट मेरे फेस पे स्माइल नहीं था. क्यों? क्योंकि ये उनका एक हफ्ते का
डोज था, मे बी एक हफ्ते का भी नहीं होगा, 3 days का होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट हम लेट अस कंसिडर कि वो हफ्ते का भी था, 20,000 का मान के चलो, नॉर्मल इंसान जाएगा। 4 हफ्ते का कितना हो गया? 80,000। जो उनका आईसीयू का रूम रेंट था 5,000 पर डे। शाम को मैं गया, बैठा पहाड़ियों पे, हॉस्पिटल पे हम बैठे, मैंने पूछा अंकल से, हट्टे कट्टे जट सिंह फैमिली को बिलोंग करते, कुर्ता पजामा पहना, तो मैंने पूछा अंकल कि क्या जिंदगी में ऐसा हुआ कि आपको कैंसर हुआ? लगता तो ऐसा है नहीं, क्योंकि ब्लड निकल रहा था कफ में, बलगम में। तो ही सेड बेटा मैं ना ऐसा करता था जब मैं खेती करता हूँ ना किसान, तो हम ना जो ढक्कन होते हैं ना दवाइयों के बॉटल्स, उसको मुंह से खोल दो, पॉइजन इज पॉइजन, it will not see caste color creed and that. But the point over here is that I wish to make is कि टैक्सेस हर स्टेट दे रही है, हर सिटीजन दे रहा है, बट कल को कोई प्रॉब्लम आएगी, मे बी चंडीगढ़ में रिसाइकल्ड वाटर मिलता है, बट एक डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब या एक डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी हरियाणा वहां नहीं मिलता। मेरी बात समझे? व्हाट आई विश टू, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये सिर्फ उसके कारण था, जो मैं बात कर रहा हूं फूड वाले रीजन के कारण। जो अगली बात करें हम मोबाइल फोन्स की, कि एक पर्सन के पास ऑन एवरेज 2 फोन्स है। हाँ, प्यूरिफाइड, हाँ, नहीं वो वाला नहीं, मैं प्यूरिफाइड की बात कर रहा हूँ। क्यों? जैसे क्लोरीन ट्रीटेड, कि चंडीगढ़ के घरों में आता है तो आपको क्लोरीन ट्रीटेड होता है, बट आपको वहां पे वो नहीं मिलेगा। रिसाइकल्ड वो वाला नहीं मैं बात कर रहा, कि जो कि वो नहीं दस्ता है। ओके, बट उसमें भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कि उसको आप स्टैंडर्डाइज करके नालों के पानी को रिसाइकलिंग प्लांट लगा के, जो आपकी धोने वाले गाड़ियां धोने वाले प्लांट है, वहां भेजा जा सकता है। सेवरल अदर थिंग्स कैन बी डन, पोटेंशियल इज देयर, टेक्नोलॉजीज आर देयर, कि जो कि यूएस में लोगों ने पेटेंट फाइल किया हो, इंडिया में ना किया हो। हमें बच्चों को अपने प्रोजेक्ट्स उनको ऐसे देने हैं, तो आइडेंटिफाई करें प्रोजेक्ट्स अपने बीटेक, एमटेक, पीएचडीज, कि जो ऐसे प्रोजेक्ट्स बेस्ड हो। नॉर्मली हम वो प्रोजेक्ट्स ऐसे आइडेंटिफाई नहीं करवाते, हम पेटेंट लिटरेचर सर्च करने को कहते ही नहीं उनको। देयर ह्यूज पोटेंशियल इज देयर। कई टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं, लोगों को लगता है कि इंडिया में शायद उसका मार्केट नहीं है, उन्होंने यहाँ पे प्रोटेक्ट नहीं की, एंड दे आर ओपन। मैंने बताया था नेशनलाइज राइट्स, वहां पे प्रोटेक्टेबल है। इंडिया में कोई पेटेंट नहीं ले सकता उसको, बट इंडिया में यूज कर सकते हो आप ऐसे। सो व्हेन वी से, तो जब मोबाइल फोन की बात करूं, 2 से 3, 4 मोबाइल फोन, अगर एक बंदे के पास 2 मोबाइल फोन है, एक फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, नहीं, आई ऑल्सो हैव इट। एक फैमिली में 8 से 10 मोबाइल फोन है, 132 करोड़ आबादी है, एंड आई एम श्योर 100 करोड़ मोबाइल फोन होंगे। और अगर 100 करोड़ मोबाइल फोन होंगे, तो अगर उसका पाइल बनाए तो कैसा बनेगा? और जब वो रेन वाटर होगा, तो जब उसमें से लेड, कैडमियम या आपके जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो जाएंगे वाटर टेबल में, अब वो वाटर आपको पीने को मिलेगा तो कैसा रहेगा? एंड आई प्रेडिक्ट अगर हर घर में अगर एक कैंसर पेशेंट हो गया है, नहीं सॉरी, अगर हर घर में एक कैंसर पेशेंट हो गया, हाउ? नहीं सर, इस एक अलग चीज है, इट हैज अ सार वैल्यू, तो सीधे चेक ही नहीं की। Each mobile phone, each electronic device has a specific absorption rate, SAR value. That is that value कि इसका आपकी बॉडी में absorption क्या है एंड आपके ब्रेन पे absorption क्या है। एंड GSM 900 एंड 1800 जो स्टैंडर्ड्स हैं, उसमें से एक का बहुत क्लोज है, 1.5 is the allowed and 1.455 or something like that is the value. सो हम जब इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट डिजाइनिंग की बात करते हैं, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, हम बच्चों को पढ़ा तो देते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनो, बट हम उनको ये नहीं बताते कि आपको सार वैल्यू भी देखनी है प्रोडक्ट डिजाइनिंग के टाइम में। पर अच्छी कंपनी जब व्हेन दे विल जॉइन सैमसंग, HCL, और वो करवाएंगे, बिकॉज उनको इंटरनेशनल वो फाउंडेशन है, बट दिस इज नॉट बीइंग टॉट इन योर कोर्स करिकुलर ऐसे। सो in a nutshell, we can say that to deal with the environment problems, we are called upon to innovatively use IT and make IT systems and work practices greener. So here we have there are several terms we have reviewed. I have reviewed for any person who wish to work in the domain of green.
or sustainability, he must be aware of these basic terms. So I will quickly review them. Green refers to products or properties, physical attributes in context of eco-friendliness and or energy efficiency or carbon footprint. Okay, here I would like to hit upon what is carbon footprint. What is carbon footprint? जैसे कार्बन फुटप्रिंट इज कि कार्बन फुटप्रिंट एक इंडिविजुअल पर्सन का भी हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है. फुटप्रिंट मीन्स पांव के निशान. तो ऐसे कार्बन फुटप्रिंट मीन्स आप कितना कार्बन रिलीज कर रहे हो इन्वायरमेंट में. तो कनाडा में कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका कि एवरी 15 सेकंड उनकी वेबसाइट पे अपडेट होता है कि हाउ मच CO2 दे आर एडिंग टू द एनवायरमेंट. They have made those systems every 15 seconds. And US ने क्या किया है कि अपने पर एम्प्लॉय कार्बन फुटप्रिंट का एक कोटा साइन कर दिया. अगर 100 पॉइंट्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, 500 पॉइंट, अगर मान लो से 5 डिपार्टमेंट है तो 500 इंटू डिवाइडेड बाय 5, 100 पॉइंट्स पर डिपार्टमेंट. 100 पॉइंट्स 10 एम्प्लॉय हैं उस डिपार्टमेंट में, 100 डिवाइडेड बाय 10 पॉइंट्स पर एम्प्लॉय. और अगर आपका वो जो यूनिट रखा है उनसे उससे ज्यादा आप पोल्यूशन करते हो तो इट हैज बीन लिंक्ड टू योर परफॉर्मेंस अप्रेजल. कि आपका इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, आपका फाइन लगे, पेनल्टी और पेनल्टी, व्हाटएवर थिंग्स दे हैव डिसाइडेड. सो दे हैव इंक्लूडेड इट इन टर्म्स ऑफ देयर परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम्स आल्सो. सो दैट इज अनदर एरिया ऑफ पोटेंशियल ऑफ वर्किंग. You can work in as a set up a business in that context also. That's it. Trading view. Carbon trading, that is another concept. Carbon trading is another concept जिसमें points की आपकी trade off हो जाता है. For example, let us consider 2 companies. One is FedEx. Federal Express is owning its fleets of aeroplanes. That's it. And suppose allowed है 1000 पॉइंट. अब एक उन्होंने ऐसा कंपटीशन जनरेट कर दिया कि आपको लीगली कन्विक्ट नहीं किया, क्योंकि बिजनेस को अगर लीगली बंद करे जाएगी गवर्नमेंट तो इकोनॉमी डेवलप नहीं होगी, कंट्री भी नहीं ये चाहेगी कि हमारी इकोनॉमी सफर करे. तो उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया, कार्बन ट्रेडिंग डिवाइस किया, मेथोडोलॉजी कार्बन ट्रेडिंग का, कि एक आपको अलाउड है मान लो 600 पॉइंट. उन्होंने कह दिया कि 600 से अगर आप ज्यादा करोगे तो फिर हम आप पे फाइन लगाएंगे, लेवीज लगाएंगे, ड्यूटीज लगाएंगे, टैक्सेस लगाएंगे. अगर 600 से कम करोगे, उन्होंने कह दिया कि आप 600 से कम, 600 पॉइंट अलाउड है और आप 400 कर रहे हो पोल्यूट, 200 पॉइंट आपके सेव है, यू कैन सेल दोस 200 पॉइंट्स. और अगर आपको ज्यादा है, यू हैव टू परचेज दोस 400 पॉइंट्स. आपका 1000 पॉइंट्स है बट 600 अलाउड है तो आपको 400 खरीदने हैं. इट मीन दोनों के लिए एक मोटिवेशन है. जो ज्यादा कर रहा है वो कम इसलिए करेगा कि उसको कम से कम खरीदने पड़े, और जो ऑलरेडी कम कर रहा है वो और कम करेगा क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा बेच पाऊं. दैट इज अ बेसिक फंडामेंटल बिहाइंड दैट कार्बन ट्रेडिंग. So the greening, it refers to the reducing energy consumption, maximizing energy uses efficiency, and whenever possible, opting for renewable energy uses. The use of components and consumables that are eco-friendly plays a vital role. Sustainable, it refers to the business processes, values, ethics, and social justice in addition to green physical attributes of a product or property. Sustainability, a definition that is given by World Commission on Environment and Development in 1987. That is, it defines sustainability as the development that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generations to meet their own needs. So now we come to sustainable design. It refers to the system design where the objectivity is to create places आप create करनी है, products, services in a way that reduces the use of non-renewable energy sources, minimizes environmental impact, and relates people with the natural environment. I have mentioned the name of the authors that have from where I have reviewed these definitions. Triple bottom line, it refers to the people, planet, and profit. So sustainable development, we define sustainable development as a development that strikes a balance between the people, planet, and the profit. And if any business
does it, it automatically classifies to be a social entrepreneur venture also. That's it. I may be into some kind of industry, say leather industry. People I have taken care of, I have to provide shoes. Profit is there, profit business is there, profit should be there, profit is there. But planet, इसका जो वेस्ट वाटर को क्या नुकसान कर रहा है, अगर ये वेस्ट निकलेगा तो मैं उसको कोई ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहा हूँ, जो मैं उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई मिटिगेशन स्ट्रेटजीज लगा रहा हूँ. 10 है. Energy efficiency. Energy efficiency, each one of us know, so I am skipping this definition. Okay, corporate social responsibility. CSR are the actions taken by a firm that are intended to further social welfare beyond the direct economic, technical and legal interests of the firm. तो CSR पे हमने सेशन भी रखा है अगले हफ्ते में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको मैंडेटरी कर दिया है कि हर कंपनी को अपने प्रॉफिट्स का 2% जो है CSR एक्टिविटीज में. एंड व्हेन वी से CSR एक्टिविटीज, कैन यू मेक आउट कि सबसे आज से 2 साल पहले मेरे को मौका मिला था भास्कर चैटर्जी से मिलने का, और राकेश भारती मित्तल जो चेयरमैन है एयरटेल वाले, वो एक सेशन था इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में मोहाली में, तो उस सेशन में हमें अटेंड करने का मौका मिला था. तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इज देयर. तो भास्कर चैटर्जी हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ दैट IISEA, he designed this, he brought this concept of CSR into the Indian system, जो इन्होंने डिवाइस किया. वो कहते हैं कि जो हर कंपनी का जो 2% है उसको अपना इन्वेस्ट करना है CSR एक्टिविटीज में. कैन यू मेक आउट? उन्होंने पूछा हमसे कि ONGC का 2% ऑफ प्रॉफिट कितना है. He asked us a question and we were shocked when he answered. He says 200 of the profits of ONGC is 600 crore rupees, and annually they have to invest 600 crores in social initiatives that beyond the direct business lines of the ONGC. उससे अलग होना चाहिए. अगर एयरटेल अपने 2% प्रॉफिट का लगाना है तो एयरटेल अपने सिम्स के बिजनेस में नहीं लगा सकती. उसको उन्होंने 9 के कितने एरियाज बनाए थे, उस पे काम करना है. जैसे आप विमेन एजुकेशन पे उठा सकते हैं, किसी में फीमेल्स की किसी स्टेट में कंडीशन नहीं अच्छी, उस पे उठा सकते हैं. कहीं पे टेररिस्ट अफेक्टेड एरियाज है, वहां पे बच्चों की डेवलपमेंट को उठा सकते हैं. दैट्स इट. सो ईच कंपनी हैज टू डू इट. तो फिर उनसे एक क्वेश्चन था कि 2% ही क्यों रखा, आपने 4 क्यों नहीं रखा, 5 क्यों नहीं रखा, 10 क्यों नहीं रखा, 1 क्यों नहीं रखा. तो फिर उन्होंने बताया कि पहले इसकी 3 कैटेगरी थी, समथिंग 2 से कम थी, 1 ज्यादा थी. 3 कैटेगरीज ABC कंपनी को कैटेगराइज करना था कि जिसका प्रॉफिट ज्यादा है वो ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, जिसका मीडियम मीडियम, जिसका कम है कम, रेशियो वाइज. बट वो कहते हैं कि टू कीप अ ट्रैक कि कौन सी कंपनी किस कैटेगरी में मूव हो रही है, कब मूव हो रही है, वो बहुत टफ था. तो इसलिए हमने उसको एवरेज आउट करके 2% कर दिया. फिर क्वेश्चन ये आया किसी का कि करप्शन, आपको पता है कि हर IAS ऑफिसर्स की वाइफ्स के नाम पे NGOs होती हैं, पॉलिटिशियंस की होती हैं. उनका ऐसा नहीं, उन्होंने ये भी कर दिया कि जो CSR का फंड को आपका इंप्लीमेंट होना है, उसका जो डायरेक्टर होगा वो इंडिपेंडेंट हेड होगा. he may be a person from outside the organization. एंड आपको ये चीज आपकी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करनी है, बैलेंस शीट और एनुअल रिपोर्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, किसी चीज में. तो वो कहते हैं हमने क्या किया इसको, हाँ हाँ मैं थोड़ा सा उसको भूल चुका हूं, बट आउटसाइडर होगा, मतलब इंडिपेंडेंट कमेटी होगी, वो अंदर वाला एम्प्लॉय नहीं करेगा. एंड सेकंड उसमें ये भी था कि वो कहते कि इसको हमने मैंडेटरी ये कर दिया कि आपको अपनी वेबसाइट और आपको उसको एनुअल रिपोर्ट, कौन सा डॉक्यूमेंट उन्होंने बताया था, एनुअल रिपोर्ट और आपका बैलेंस शीट, उसमें आपको रिफ्लेक्ट करना है, उसको दिखाना है. तो वो कहते हैं इससे क्या किया हमने, उसको RTI एक्टिविस्ट के दायरे में ला दिया कि अगर कोई देगा भी तो वो निकाल लेंगे उस इंफॉर्मेशन से कि किसको काम जा रहा है, कि ट्रूली अच्छा काम कर रहा है उसको जा रहा है कि दूसरे को. बट कह रहे अगर ऊपर से नीचे सारे ही मिले हो तो फिर तो भगवान ही बचाए. बट they were saying कि we are evolving the mechanisms where the maximum transparency should be there, and now it is a CSR fund is also one major
In my old session, I was very much clear that I used to take green IT on regular basis 2 years back. So उसमें मैंने मेंशन किए हैं ये सारी चीजें, बट उसमें मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो CSR की जब बात कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फंड है. जब हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बात करते हैं तो जैसे हम प्रॉफिटेबिलिटी दिखाते हैं, हमें ब्रेक इवन पे बात करेंगे, हमें अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की दिखानी है. यहाँ पे आपको फायदा दिखाना है इन टर्म्स ऑफ द बेनिफिट टू द सोसाइटी. आपकी रिपोर्ट ऐसे बनेगी जैसे एयरटेल को मैं एक प्रोजेक्ट बना के भेजता हूँ कि मैं ब्लड डोनेशन पे काम करना है, तो आपको उसको इस वे से दिखाना है कि अगर आपसे इतना पैसा लेके मैं क्या क्या करूंगा और कितने लोगों को फायदा जाएगा, एंड उसको कंपेयर करना है इन टर्म्स ऑफ मनी. But benefit can't be in terms of money. It has to be in terms of society. That's it. But there is a huge funds available. So the engineering college, polytechnic students can focus on these kind of funds. Okay. Further emphasizing on IT, Mola et al. In 2009 advocated the development to the extent CSR and environmental sustainability to IT too. वो कहता है IT में भी CSR को लेके जाओ. इको गोल्स की बात की गई है, इको एफिशिएंसी, देन इको इक्विटी है और इको इफेक्टिवनेस. तीनों को मैं छोड़ रहा हूँ, है ना, क्योंकि डेफिनेशन है वैसे, बट वी कैन एलैबोरेट अपॉन. इसमें बहुत डिस्कशन हो सकता है, बट अगर आप चाहते हैं मैं कवर करूँ उसको. ओके हाँ, मैं डेफिनेशन पे आता हूँ ग्रीन IT का. So when we say green IT, it refers to the environment conscious and the cost effective use of power and production of technology by centering around saving energy through hardware, software, services and even habits. तो यहाँ पे बात आती है कि आपकी हार्डवेयर से जब आप बात करते हो बनाने की चीज की, तब सॉफ्टवेयर, अगर सॉफ्टवेयर से उसको कंट्रोल करने की या मॉनिटर करने की, सर्विसेज एंड इवन हैबिट्स. एग्जाम्पल हम लेते हैं, परफेक्ट. सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर को हैबिट का पार्ट है कि हम अपना कंप्यूटर जब उठ के आते हैं ऑफिस का बंद करते हैं कि नहीं, स्लीप पे डालते हैं कि नहीं, हम मीटिंग में जा रहे हैं हम वैसे छोड़ देते हैं. दैट इज अ हैबिट. बट डू वी हैव अ सॉफ्टवेयर की अगर लैब है तो शाम को एक बार टर्न ऑफ करूं सारे कंप्यूटर इकट्ठा टर्न ऑफ हो जाए, जैसे स्लीपिंग में चला गया ऑटोमेटिकली भी हो सकता है ऐसे. ओके ओके. ग्रीन IT may also be defined as an organization's ability to systematically apply environmental sustainability criteria such as pollution prevention. जब pollution prevention की बात करते हैं, प्रोडक्ट स्टीवर्डशिप, जब प्रोडक्ट को बना रहे हैं उसको environment friendly बनाना है, वो the use of clean technologies in its production processes or manufacturing plant to the design, production, sourcing, use and disposal of the IT technical infrastructure as well as within the human and managerial component of the IT infrastructure. जैसे कल मेरी बात हुई सिडबी से जो आए थे महेश्वर सर, है ना, उनसे बात यही हो रही थी कि वो कहते थे कि हम जब मैंने ग्रीन IT पे बात हुई, हमारी छिड़ी 15 मिनट बात हुई, तो उन्होंने पूछा कि ग्रीन IT क्या है, तो मैंने उनसे बताया. तो ही सेज जब वो कंप्यूटर खरीदते हैं, सिडबी खरीदता है कंप्यूटर, तो वो कहते हैं हम उनसे पहले ही करते हैं बाय बैक अरेंजमेंट कि हम आपसे कंप्यूटर लेंगे, पर 3 साल के बाद जब हम नए कंप्यूटर लेंगे तो आप पुराना हमसे वापस लेंगे, हम किसी और को नहीं देंगे, क्योंकि इसको डिस्पोज ऑफ करना, राइट ऑफ करना एक बड़ा चैलेंज है ई वेस्ट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग. एंड गवर्नमेंट्स में क्या होता है, कई यूनिवर्सिटीज में, आई विल नॉट नेम, प्राइवेट आल्सो, मैंने देखा कि कॉरिडोर्स में वेस्ट पड़ा हुआ है, निकलता ही नहीं है. That's it. Because there are many challenges, and in that sourcing also matters. That's why I am keeping these sessions repetitively. I have separately conducted a program on e-governance and green IT also, ताकि एडमिनिस्ट्रेटर्स का ध्यान जाए उन चीजों पे. हम मिस कर देते हैं, IAS ऑफिसर्स तो हम बन गए, बट वी डू नॉट, वी मिस दिस होलिस्टिक. बट एनी हाउ हमें अपना रोल अदा करना है, हमें अपना रोल अदा करना है, हमें उनको माइंड में ये
ओवरव्यू लेके आना है ना. ग्रीन आईटी सोर्सिंग, फ्रॉम अ सोर्सिंग परस्पेक्टिव ग्रीन आईटी इंप्लाइज अ प्रैक्टिस ऑफ एनवायरमेंटली प्रेफरेबल आईटी परचेजिंग. जब मैं गवर्नमेंट सिस्टम में हूँ ना, मैं भी जानता हूँ कि कितने प्रेशर होते हैं. तो बट हमें हर बंदे को अपना अपना रोल अदा करना है. एज अ सिटीजन मैंने सोचा कि व्हाई नॉट आई डिजाइन अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसको इंटरनेट पे कर दो. मे बी कभी ना कभी अगर 10 सेंटर जुड़ते हैं, 30 टीचर सुनते हैं इसको, एक दिन के लिए याद रखते हैं, 300 टीचर्स 60 बच्चों की क्लास में एक दिन में डिस्कस करते हैं, 60 इंटू 100, 6,000 लोगों तक, ऐसे या 36,000 लोगों तक. तो उसमें से लोग, बच्चे में से लोग आईएएस ऑफिसर बनेंगे, उसी में से बैंकर्स बनेंगे. ऐसे you have to see, we have to see how we have to have a multiplier effect. So from a sourcing perspective, green IT implies a practice of environmental friendly IT purchasing. From a operations perspective, green IT implies a improving energy efficiency in powering and cooling corporate IT assets and reducing IT induced greenhouse gas emissions. Green IT perspective, from a green IT services perspective, it refers to the role of IT in supporting a business overall sustainability initiatives. Adopting a green IT from a sourcing services perspective, therefore, includes the adoption of analytical tools for green supply chain management, environment management, and carbon footprint analysis. Green IT end of IT life cycle, वहाँ पे आपका dispose of की बात करते हैं, recycling की बात करते हैं, या refurbishment की बात करते हैं. एक और चीज बात करूंगा, जैसे आईआईटी बॉम्बे हमारा स्पोकन ट्यूटोरियल्स और प्रोग्राम्स कर रहे हैं, है ना. तो कई बार कोई पॉलिटिशियंस या सम पॉलिसी मेकर्स कह देते हैं कि हम बच्चों को फ्री में इतने गैजेट्स दे देंगे. बट माय क्वेश्चन इज टू देम आल्सो. मैंने जो लोगों को मिलता हूं, मैं कहता हूं सर कि मेरा हम्बल सा एक रिक्वेस्ट है कि आप ये चीज ध्यान रखना कि आप गैजेट तो दे दोगे 10 लाख लोगों को, 20 लाख लोगों को, बट जब वो ई वेस्ट बनेगा तो उसको मिटिगेट कैसे करना है. ऐसे because that is the responsibility of the people like us. हाँ, हमें बताना है, करेंगे. देखो सिंपल सी बात है, टू बी अ टीचर. सर आई हैव वर्क. नो यू हैव टू. देखो बेट बनानी पड़ती है ना. मैं एनजीओ में जब मैं कहता हूँ काम करता हूँ, तो व्हाई आई डू वर्क, you give the good suggestions to the politician, say to him you do it, your image will become better. He will do it for votes but get the things done जो कि चाहिए सोसाइटी के लिए. क्या होता है कि उसको बताने वाला कोई नहीं होता. उसको बताने वाला हम अपना मीनिंग बताते हैं कि मेरी वाइफ का ट्रांसफर करा दो. हम ये नहीं बताते कि आप जागरण के लिए पैसे दिलवा रहे हो तो जागरण के साथ साथ आप अपने गली के आसपास पेड़ भी लगवा दो. हमारे में भी वीकनेस है पहली. सेकंड, जो आईएएस ऑफिसर नहीं उसका भी रीजन है, सर. नहीं सॉरी, हम भी गलत हैं उसमें. मैं बताता हूँ. आईएएस ऑफिसर है, आईएएस को आप कहो कि ये करो सर, मैं बताऊं सर ये करो, आपको बहुत अच्छा है ना. आईएएस सीनियर्स को पोजीशन उन्होंने दिखाना है अपना परफॉर्मेंस, दे विल डू इट. एंड दिस बेस्ट वर्क कैन बी डन बीइंग इन एकेडमिक्स. As a teacher, I have done it and I have found it. People do it. कैसे करना है आपको? गलती कहाँ पे होती है? जैसे इंडियन रेलवेज है, आप ट्रैवल करते हो, वो आपसे फीडबैक मांगते हैं. आजकल बैक कॉल आती है, पता नहीं आपको आई कि नहीं, मेरे को आई. When I travel, उसके बाद कॉल आती है कि आप फीडबैक दो हमारे सर्विसेज के बारे में, कहाँ इंप्रूवमेंट चाहिए. हम नहीं देते, हम फोन कार्ड देते हैं. जब कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी बनती है, वो न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइज करते हैं कि ये हमने ड्राफ्ट पॉलिसी बना दी है, आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, उसको देखें, अगर आपको लगता है कि कुछ उसमें इंप्रूवमेंट्स चाहिए, चेंजेस चाहिए, आप हमें बताएं, सजेस्ट करें. बट हम नहीं करते. वी आर सो बिजी पीपल, वी डू नॉट डू इट. दैट्स इट. बिकॉज नहीं, आईएएस में सर दोनों में एक फर्क है. हमें एक चीज अंडरस्टैंड करनी है कि जो सेक्रेटरीज है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हैं, उनको दे आर लाइक अस ओनली, बस दे हैव द गुड आई वुड से मेमोरी पावर एंड दे हैव अथॉरिटी डेलीगेशन टू यूज द फंड्स, डिसेमिनेशन ऑफ द फंड्स. और उनको यही सिखाया जाता है कि आपने लोगों से ही सोल्यूशन जनरेट करने.
कुछ लोग नहीं करते, वो उनकी गलत प्रैक्टिस होगी, बट मैक्सिमम आईएएस का मतलब ही ये होता है कि व्हेन आई एम इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन, वन ऑफ माय फ्रेंड्स वाज वर्किंग विद इन अ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पोजीशन, पीसीएस पोजीशन विद बंगाल गवर्नमेंट. Mithun Barua was there. He used to discuss the things with me and he used to implement those things for his state. उसमें कोई ईगो क्लैश नहीं था कि अमरदेव मेरे को क्या सिखाएगा. वो पूछता था कि अमरदेव तुम बताओ इसमें कैसा होना चाहिए. He used to, है ना, we used to interact maybe for 1 hour. बट कौन सा बंदा ऐसा पागल होगा कि जो 1 घंटा अपने फोन से फोन लगाएगा एक बंदे को पंजाब के, तू बता कि क्या हो सकता है. तो कौन सा बंदा ऐसा पंजाब में होगा जो 1 घंटा अपना देगा. बट इफ यू डू इट, चेंजेस विल बी देयर. थोड़ा सा चेंज है, अगर आप देखो ना, हाँ, स्मार्ट सिटीज है, जैसे वो उस पे अगर वेबसाइट पे आप देखो, उन्होंने उसका फीडबैक आपके सजेशंस के लिए बहुत टाइम ओपन रखा है. परफेक्ट. हाँ हाँ, वही मेरे पॉइंट है, वही मैंने पॉइंट सर का इम्प्लीमेंट हुए. दैट्स व्हाई मैं सर का पॉइंट आंसर कर, हम देना नहीं चाहते. दैट इज देयर. वो सुबह वाली बात हो जाती है आईपीआर वाली कि ये हम सिस्टम को एक बार कर्स कर देते हैं एक स्टेटमेंट में कि ये सिस्टम ही ऐसा है, गवर्नमेंट ही ऐसी है. हम वहीं पे खत्म कर देते हैं ना बात. वैसे ओके. Summary of practices constituting green IT sourcing perspective. Green supplier section, कि आप उस supplier से खरीदते हो कि जिसने कोई ऐसी सर्टिफिकेशन ले रखी है, किसके प्रोडक्ट्स जो है इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है ना, एनर्जी स्टार सर्टिफिकेशन ले रखी हो उन्होंने. आपको पता होगा कि सारे जो एसी वगैरह सबकी एनर्जी स्टार रेटिंग लेते हैं. दस्ते नहीं, बट आप घर के लिए लेते हो, मे बी आपको चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर के लिए नहीं लेते होगे. दैट इज माय क्वेश्चन. So more energy efficient environmental friendly equipment section, consideration to recycling and upgradation, environmental considerations in IT procurement, preferences to use of green energy, preferences to vendors with leasing or take back arrangements, laptops as an alternative to desktops. Laptops on off में कम energy खाते हैं than your desktops. Do you give weightage to the green labeling certification obtained by the vendors before making IT purchase? Okay. Summary. Some of the summary of practices constituting green IT operations perspective. Server virtualization and consolidation. कि आपको क्या हर चीज के लिए सर्वर अलग अलग रखे हैं, क्या आप एक जगह पे करते हो. जैसे थापर में हम कहते हैं कि आपने एक जगह पे DHC पे सर्वर लगा दिया, उन्होंने कैलकुलेशन कर रखा कि एट अ टाइम हमारी कितने लोग मैक्सिमम ऑनलाइन होंगे, उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक आईपी एड्रेसेस आपको असाइन हो जाते हैं. कई बार ऐसा होता है कि लोग एट अ टाइम ऑनलाइन 300 होने हैं, आपने प्रोविजनिंग जो की है, वायर बिछाई है, राउटर्स लगाए हैं, वो आपने 4000 के बंदों के लिए लगा दिए. कई बार ऐसा होता है कि चाहिए आपको 400 बंदों के लिए से आपने किया अरेंजमेंट 50 के लिए. ऐसे DHCP protocol is there. Equipment and light turning off policy for not in use equipment. For example, जैसे लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी में आजकल ये कंसेप्ट है कि लाइब्रेरी के साथ एक कंप्यूटर लैब होती है, यहाँ पे कोई पर्सन जाके बैठ जाए. तो ऐसा तो नहीं कि आप उस कंप्यूटर लैब को चलो ओपन रखते तो पूरा ही 24/7 ओपन कर दिया, 12 घंटे 8 घंटे कर दिया, और कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, बैठा है नहीं बैठा, वो चल रहे हैं. कोई आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है जैसे सेशन वाइज के बच्चों में कि आपकी 1 घंटे की क्लास इस टाइम पे होगी, कंप्यूटर आप लाइब्रेरी में यूज कर सकते हैं, आपकी 1 घंटा ये है, आपकी 1 घंटा ये है, जब दिन में 3 घंटे वो ऑन रहेगा, बाकी टाइम बंद रहेगा. ऐसे प्रिंट ऑप्टिमाइजेशन एंड अवॉइडेंस. प्रिंट ऑप्टिमाइजेशन मीन्स 2-side printing using reduced font size or using eco fonts. Eco fonts are also there. There are dots in that. जब आप प्रिंट करोगे आपको अक्षर में फर्क नहीं लगेगा, बट उसमें डॉट्स रहेंगे, वो कम इंक यूज करता है. इट विल सेव इंक ऑल्सो. जब इंक भी बचती है तो इंक भी नेचुरल रिसोर्सेज से बन रही है कंज्यूम होके, और आपका इंक भी बची, आपका पेपर भी बचा. जैसे देन अवॉइडेंस, जब नहीं जरूरत ना लिया जाए. सेकंड इज दैट कि हमें प्रिंटर इगोइस्टिक नहीं होना चाहिए कि मैं मेरे साथ वाले कुलीग को प्रिंटर मिला तो मेरे को भी मिले. हमारे सिस्टम में नॉर्मली ये होता है, जितने लोग
उतना प्रिंटर्स चाहिए, नहीं तो वो ईगो इशू होता है, उसको मिल गया हमें नहीं मिला। इट कैन वी यूज नेटवर्किंग, कैन वी यूज नेटवर्किंग करके एक जगह पे कॉमन प्लेस पे प्रिंटर हो सकता है। हाँ, वहां पे हेड एचओडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस चीज को समझे मेच्योरिटी से कि अगर कोई पर्सनल टिकट टुकट निकालता है मना ना करे, उसको बेशरम ना करे, क्योंकि हम नॉर्मली क्या करते हैं कि उसको ऐसा समझ लेते हैं हमारे घर की प्रॉपर्टी है, उसको अलाउ करे। बट जब कॉमन प्लेस पे होगा तो ऑटोमेटिकली हम जब जरूरत है तभी प्रिंट निकालेंगे। एक शर्म भी होती है, फियर है ना, हमें लगता है कि दूसरा बंदा क्या सोचेगा यार, अगर जरूरत होगा तभी मैं निकालूंगा। निस्कियर में ऐसा ही था कि 14 कंप्यूटर के साथ उन्होंने एक प्रिंटर जोड़ा हुआ है, जब मैं वहां दिल्ली गया था। ओके, राइट साइजिंग, कोर आईटी एंड सपोर्टिंग सिस्टम, स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन। हाँ, हम लैपटॉप डेस्कटॉप हम टीचर्स खरीदते हैं, हमें हार्ड डिस्क दे दी जाती है 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट, 3 टेराबाइट, कितनी जरूरत है हमें? अगर तो आपने एक टीचिंग सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपने हाई एंड कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, फिर तो आपको हाई एंड परफॉर्मेंस वाला पीसी चाहिए। आपने वीडियोस दिखानी है, डीवीडीज रखनी है, फिर तो ठीक है। अदरवाइज मेरे को नहीं लगता कि 50 GB से ज्यादा भी डाटा तो होगा। ऑप्टिमल टेम्परेचर मेंटेनेंस, all these devices efficiencies है ना, is associated with the temperature. Design innovations in cooperation for efficiency optimization, वो आपकी जो डिजाइन इनोवेशंस मींस आपकी रूम डिजाइनिंग की बात करते हैं। जैसे आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि पहले हम ब्लैक रूम्स बना रहे हैं हमारे सिनेरियो में, फिर उसको लाइट करने के लिए अंदर से क्या करते हैं, लाइटें लगाते हैं, फिर सफोकेशन होती है, फिर एसी लगाते हैं। ये भी रिप्लेस हो सकता है। हाँ, एलईडी लाइटिंग से। हाँ हाँ, अब ये एक स्टूडियो है, स्टूडियो नहीं दस है, नहीं दस है, नहीं ही नहीं, दिस इज सर दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। हाँ, बट ये है कि इसको साउंड प्रूफ रखा गया है तो चल गया। बट नॉर्मली कई कॉलेजेस में क्या होता है, हर रूम को ही काला कर देते हैं, अंधेरे वाला। सेकंड, जो बिल्डिंग डिजाइन है, फॉल्ट कहाँ पे, वहीं से है कि अगर हम यहाँ के चंडीगढ़ की बिल्डिंग को देखें तो इसका नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है ना, जब सूरज घूमेगा कि साउथ के टाइप पे, बट हमें दिखता है ईस्ट तरफ ही है ना। बट अदर कॉलेजेस कैसे बनते हैं, इधर ईस्ट फेसिंग और साउथ फेसिंग और नॉर्थ फेसिंग और वेस्ट फेसिंग। तो वो धूप जो नेचुरल लाइटिंग का प्रोविजन ही नहीं है, अगर सूरज घूमे तो मैक्सिमम सनलाइट हैज टू बी देयर। देन more efficient power supplies and hardware, data deduplication, desktop virtualization, liquid and water cooling arrangement for IT equipments, and some more technologies like spam filtering, cloud computing, solar energy और टेक्नोलॉजी है जिसपे काम किया जा सकता है, जिनको आगे प्रमोशन में लाया जा सकता है। ओके, समरी ऑफ प्रैक्टिसेस कंस्टिट्यूटिंग ग्रीन आईटी सर्विसेज पर्सपेक्टिव, थिन क्लाइंट प्रोविजनिंग, क्लाइंट सर्वर है ना मॉडल, पावर एफिशिएंसी मॉनिटरिंग यूजिंग अ सॉफ्टवेयर। थिन क्लाइंट में आपको ये रहता है कि आपने दिमाग एक कंप्यूटर में रखा, जैसे मान लो कि मेरे को प्रिंटिंग लेना है तो हर कंप्यूटर में मैं ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल ना करूं, जैसे एक में वहां से प्रिंट की कमांड गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैक्सिपा में बहुत अच्छा सिस्टम था, उन्होंने हर पीसी पे, ऑफिशियल पीसी पे सिर्फ जो स्टोरेज स्पेस दी थी वो 10 GB दिया था। एंड उन्होंने एक पैकेज डिजाइन किया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस का कि वो आपका वहीं से जो आप करोगे वो उनका मेन सर्वर पे बैकअप होता रहेगा। आपने बैकअप कर दिया, महीने का काम हुआ, बैकअप किया, डिलीट मार दिया, आपके पास 10 GB की स्पेस हो गई है और आपने डिटेल्ड सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं किए। जो आपका वो सर्वर है आपने वहीं पे इंटरनेट वो क्या एंटीवायरस इंस्टॉल किया, वहीं से सारी मशीन्स स्कैन हो जाएंगी। सर्वर क्लाइंट मॉड्यूल कि वन मेजर सर्वर, बाकी क्लाइंट पीसेस। Power efficiency monitoring, it can be using softwares also, or it can be using clamp meter also. Power management tools, software features, time-based user policy, powering down of ideal systems. IT used to monitor and reduce carbon footprint, retiring old inefficient computers, go green policy, incentives for employees. ये कैसे ऐसे कंपटीशन करते हो? अभी तक हम ऐसा करते नहीं कुछ, कि हम ऐसा कैलकुलेट भी करना शुरू करें कि हमारे ऑफिस में से किस एम्प्लॉय ने सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूम किया। बट इट हैज टू, धीरे धीरे आएगा, आना पड़ेगा। ओके,
Summary of practices constituting green IT end of IT life management perspectives, environmental friendly disposable provisions. तो जैसे नीचे आपने देखा होगा नेटर के ग्राउंड फ्लोर पे एक HP का डब्बा लगा हुआ है। अगर आप रिस्पॉन्सिबली HP की जो कार्ट्रिजेज हैं उसको रिसाइकल करना चाहते हैं, फालतू है आपके पास, आप उसके अंदर डाल दें। मे बी हमें नहीं पता उसको रिसाइकल कैसे करना है, बट जो सप्लायर है उसको पता है। दे हैव टू, इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे सैमसंग के ऑफिस में जाओ और सर्विस सेंटर्स में ई बिन्स लगे हुए हैं ना, वेस्ट बिन्स, उसमें आप अपना फालतू का कोई बैटरी है, मोबाइल है, वहां आप डाल सकते हो। आपको पता नहीं कहाँ डिस्पोज ऑफ करना है। अगर आप बाहर करोगे कहीं पे, एक चाइल्ड लेबर वाला बेचारा बच्चा उठाएगा, स्किन बर्न होंगे उसके, क्योंकि हम तो उठाते नहीं, हम शेव करके ब्लेड तो फेंक देते हैं, और उसको तो एक बच्चे ने उठाना जो वो चम्मक लेके चलता है। एंड कंपनीज वाले चाहेंगे नहीं चाइल्ड लेबर खत्म हो, क्यों चाहेंगे? उनका तो वो काम कर रहा है ऐसे। ओके, रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग, दैट इज ये रिसाइकलिंग जिस चीजों की हम कर पाए, रीयूजिंग फॉर वेस्ट रिडक्शन। ओके, रिफर्बिशमेंट इनिशिएटिव्स। रीयूजिंग मींस कि अगर आपको लगता है कि आप डेस्कटॉप को नहीं बेचना चाहते तो आप उसको किसी और पर्पज पे लगा दो। जैसे आपने डोनेट कर दिया किसी ऑर्फनेज को, किसी ओल्ड एज होम को, मे बी वहां पे इतना इंटेंसिव यूज नहीं है, उन्होंने कुछ मूवी देखने के लिए यूज करना है, कुछ बेसिक कंप्यूटर टाइपिंग सीखने के लिए यूज हो सकता है, जैसे उसका कोई ऑल्टरनेटिव यूज ढूंढना है। रिफर्बिशमेंट इनिशिएटिव्स मींस कि उन्हीं चीजों को दोबारा यूज करना है, उसी में से पुरानी ऑब्सलीट चीजों में से। फॉर एग्जांपल, दो एग्जांपल्स मैं लूंगा इसमें से कि एक बार मेरा लैपटॉप ये खराब हुआ, स्क्रीन 2 बार बंद हुआ, दोनों बार मैंने ठीक करवा लिया, तीसरी बार इसकी ना स्क्रीन ब्लैक हो गई। तो नॉर्मली डेल का कभी बंद होगा ना ऐसे, तो वो फटाफट आपका अंडर वारंटी होता है, वो भी कहता चेंज हो जाएगा, आप भी कहते चेंज कर दो जी, फटाफट घर आके चेंज हो गया है ना। तो व्हाट हैपेंड, मेरे पास जो मैंने फर्स्ट सैलरी का लैपटॉप लिया था HP का, तो उसका ये ब्लैक हो गया स्क्रीन। तो मैंने मासी जी के बेटे से बात किया, तब मैं फाइनेंशियल बहुत वीक सिचुएशन से निकल रहा था, तो नया लैपटॉप भी नहीं ले सकता, रिपेयर करवाने के पैसे नहीं, क्यों नए के वो कहता अंडर वारंटी से बाहर है, नई स्क्रीन डल जाएगी 7,500 की। ऐसे 2000 मैंने MBA शुरू किया था, आई सर्टेन इन 7 to 9 आई डिड, है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, तो उसमें 8 की बात है, 8 और 9 की होगी बात, क्योंकि 8 में तो मैंने लिया था लैपटॉप सेकंड ईयर में ना, 8 एंड में जब फॉल की बात होगी। अच्छा, अब जब बात हुआ कि लैपटॉप ये ऐसा है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है 7,500 के 8,000 लगेंगे, ये तो इसको चेंज कर देते हैं स्क्रीन। तो मैंने कहा नहीं, मैंने इतने पैसे नहीं लगाने। मैंने कहा भैया एक चीज बताओ, ये लैपटॉप की स्क्रीन खराब कैसे कह रहे हो आप, क्योंकि ना तो इसमें स्क्रैच आया, ना पानी गिरा, ठीक, प्रोसेसर ऑन हो रहा है, ये तो सिर्फ स्क्रीन काली हो रही है ना। तो फिर उसने चलो कहा कि मैं करता नहीं हूँ किसी के लिए, तुम्हारे लिए करता हूँ। तो उसने ना इसको खोला, जब इसको ब्रेक किए लॉक तो इसके अंदर स्क्रीन निकली। स्क्रीन के जो ग्लास होता है उसको, उसके नीचे एक पतली सी हेयर जैसे वो पिन जैसी ट्यूब होती है, एंड वो इल्यूमिनेट करती है स्क्रीन को, वो ट्यूब फ्यूज थी। तो उसने कहा कि 2,500 रुपये में मेहनत लूंगा अपनी, 1,500 रुपये उसने कबाड़ में से कहता स्क्रीन लेके आऊंगा 15.4 इंच स्क्रीन की, उसी साइज की। तो वो लेके आया, उसने ट्यूब डाली, वो ब्लैक टेप नहीं होती हमारी इलेक्ट्रिशियन वाली, उससे जोड़ दिया, और वो अभी भी चल रहा है। मैं उसका 3 बार और ठीक करवाया, बट उसको मैं अभी भी रिटायर नहीं होने दे रहा।